Once again, dear students, I am in front of you with one of the important topic regarding human physiology, that is transportation in case of man. जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ मैन का ताल्लुक है, वहाँ पर हम मोस्टली देखते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मगर इससे पहले कि हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पर जाएं, लेट अस नो what is the need of transportation in case of all higher animals. Higher animals में transportation process की क्यों जरूरत पड़ती है? What is the fun behind it that living organisms they need to transport materials from one place to another place? See here, during the earlier classes when we were discussing nutrition in case of plants, I had discussed with you the whole process in case of plants. That is the process of nutrition in case of plants. That is the most important process which is being called as photosynthesis, जिसको हम बोलते हैं photosynthesis. तो वहाँ पर हमने आपको ये बोला कि ट्रांसपोर्टेशन एक सबसे बड़ा फंडामेंटल प्रोसेस है, सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, जहाँ पर प्लांट्स with the help of their roots they are in a position to absorb water and mineral, जिसको हम बोलते हैं mineral solution, collectively mineral solution. Now we'll see here. Many parts of the plants they show specific processes, they show specific phenomena at their respective parts, at their respective places. For example, we are having here roots of the plant. They do have these minute microscopic structures, unicellular structures. Those are being called as root hairs. जिनको हम बोलते हैं root hairs. It is because of the help of these root hairs that the successful transportation or successful intake of this water and minerals it is being facilitated. It is being facilitated across a diffusion pressure deficit जिसको हम बोलते हैं, या across a concentration gradient through some simple processes, जहाँ पर हम देखते हैं कि we are having a process which is being called as osmosis, we are having a process which is being called as diffusion. So and above all there is one more important unique process that is being called as transpiration pull, an important force and important process that is being exerted by the plant. तो यहाँ पर फैसिलिटेशन की जाती है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की, सॉइल सोल्यूशन की, मिनरल सोल्यूशन की, एंड देन दो दैट मिनरल सोल्यूशन इट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड, इट इज बीइंग चैनलाइज्ड वाया किसके जरिए? थ्रू ए सेपरेट नेटवर्क ऑफ ए टिश्यू, थ्रू ए सेपरेट सिस्टम दैट इज बीइंग कॉल्ड एज, वो एक वाटर कंटेनिंग टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं जाइलम टिश्यू. नाउ जाइलम टिश्यू इस सॉइल सोल्यूशन को, इस मिनरल सोल्यूशन को इसको अपटेक कराता है to the higher parts of plant because there is need of those materials. So transportation is governed in case of plants, in case of every living organism, where we see that materials, food, organic substances, where they are present in higher concentration, in higher amount, they are being facilitated. Their uptake is being made possible through a separate system to the site of consumption, और where their need is immediate, जहाँ पर उनकी नीड ज़रूरत होती है, जहाँ पर उनकी नीड पाई जाती है. यहाँ पर हम देखते हैं कि मिनरल एंड सॉइल सोल्यूशन यहाँ से from the root tip or from the root hairs it is being facilitated via xylem tissue up to the shoot tip, and from here at the leaf side we see that one of this water it reaches here at the leaf side. There we see that a unique and general process and a universal process it is being governed by the plants in the form of photosynthesis. यहाँ पर photosynthesis होती है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 यहाँ पर बनता है by a process which is being called as photosynthesis, about which you know clearly. मगर जहाँ पर अब ये photosynthate those prepared food materials that are being synthesized in the presence of sunlight, this is being called as here photosynthate. इनको हम बोलते हैं photosynthetes. Now these photosynthetes they are more at the leaf side and less on the other tissues of plants, on the other cells of the plants. Now in the most highly metabolized form, soluble form, this photosynthate it is being transported. Rather we can say the process जहाँ पर मैंने आपको बोला होगा उस अमल को हम बोलते हैं translocation. So translocation of this photosynthate it is being made possible, and it is being transported to each and every cell of the plant, each and every tissue of the plant. So in general we can say that transportation is a process, it is a phenomena where we see that useful materials which are present at a higher amount, at a higher concentration, they are being transported, they are being moved from the region of higher concentration towards the region of lower concentration, or towards that area or towards that place where their utilization is being made possible, जहाँ पर उनको इस्तेमाल में लाया जाता है. That phenomena is being called as transportation. And the transportation in case of plants, and it's also being met, it's also being facilitated, it's also being observed in case of all higher animals. And when we talk especially
the case of man, in the case of man, we see that there's an important fluid that carries the process of transportation, and that important fluid is observed in our body in the form of a pigment, a red pigment that is being called as blood. Now, transportation in the case of man, it is being mostly carried with the help of blood, and blood in turn, it is being facilitated, it is being transported, it is being moved across all body organs via किसके जरिए, with the help of separate kinds of blood vessels के जरिए, blood vessels और जिसको आप बोल सकते हैं blood tubes. So एक मिला जुला काम blood का और blood vessels का या blood tubes का, ये एक अलग सेपरेट सिस्टम वजूद में आता है जिसको हम बोलते हैं वस्कुलर सिस्टम, या कलेक्टली हम इसको बोल सकते हैं कॉमन नेम जिसको हम बोलते हैं ब्लड वस्कुलर सिस्टम. वस्कुलर सिस्टम, हम उस सिस्टम को बोलते हैं वेयर वी सी दैट फ्लूइड्स, जो फ्लूइड्स होते हैं, दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, दे आर बीइंग फैसिलिटेटेड वाया किसके जरिए, विद द हेल्प ऑफ दीज वेसल्स और विद द हेल्प ऑफ दीज ट्यूब्स. कंड्यूट्स हम बोल सकते हैं, पाइप्स के जरिए फ्लूइड्स को आगे धकेल दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं वस्कुलर सिस्टम. So in case of men, we are having this important system in the form of blood vascular system. तो हमारे पास है blood vascular system. So blood vascular system, it is acting as a main important system which help us in the transportation of various substances, various useful substances or various non-useful substances that are being formed within our body, जो हमारी body में बनते हैं, जो हमारी body में form होते हैं from time to time. Now first of all we will see here this transportation in case of man, where we see that blood is serving as an important component, it's serving as an important material in helping the process of transportation. जरा हम देखेंगे यहाँ पर what are the chief functions of blood first. ये जो blood है हमारी body में, what are the important functions which blood serves, जो blood carry out करता है, सबसे बड़ी function हम देखते हैं कि blood it serves important functions of blood. Functions of blood. Number first important function जो हमारा blood हमारी body में function के, हम देखते हैं कि जो useful materials होते हैं, useful material required for our body, it is in the form of oxygen, it is in the form of glucose. ये हमारी body को मैसर होता है या होना भी चाहिए हमारी body cells को, body tissues को glucose की शक्ल में, oxygen की शक्ल में. तो we see that this oxygen with help of respiration, जो पिछले दफा आपने सुना ये टॉपिक, पढ़ा ये टॉपिक, ऑक्सीजन जब लंग्स में इसका एक्सचेंज होता है तो डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज होता है विद द प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन. तो वंस दिस हीमोग्लोबिन हैविंग दिस इंपॉर्टेंट पिगमेंट, इट रेडिली कंबाइंस विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स HbO2 जिसको हम बोलते हैं प्योर ब्लड भी आप बोल सकते हैं कॉमन टर्मिनोलॉजी में, या अप्रोप्रिएटली बायोलॉजिकल सेंस से इसको बोल सकते हैं आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन. वंस दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन इट इज बीइंग फॉर्म्ड, हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है, प्यूरिफिकेशन होती है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीजन. नाउ इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, इसको धकेल दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए पंपिंग ऑर्गन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ मस्कुलर ऑर्गन व्हिच इज बीइंग कॉल्ड एज हार्ट. नाउ विद द हेल्प ऑफ दैट मस्कुलर ऑर्गन दिस प्योर ब्लड इट इज बीइंग सप्लाइड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 हर सेल में पहुंच जाता है, ये हर सेल में पहुंच जाता है. सपोज कीजिए ये हमारी सेल है, तो हम देखते हैं कि ये सेल है या टिश्यू है, इसके इमीडिएट एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट गैस बनता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. बट वंस दिस प्योर ब्लड इट रीचेस हियर टेक्स प्लेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वेस्ट गैस, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, रेडिली डिफ्यूज होता है ब्लड में, और ऑक्सीजन यहाँ पर इसके अंदर धकेल दिया जाता है. नाउ सी हियर फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, blood it serves as a main source in the transportation of useful components like oxygen or we can say glucose. आपने इससे पहले भी देखा, हम देखते हैं कि during the process of digestion, सपोज कीजिए हमारा स्टोमक है, स्टोमक में डाइजेशन हो रही है तो ग्लूकोज बनता है. तो ये ग्लूकोज या स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ही हम देखते हैं कि readily with the help of those finger like portions, those are being called as villi. यहाँ पर हम देखते हैं कि these villi are being richly supplied with blood capillaries. यहाँ से डायरेक्ट डिफ्यूजन होता है ग्लूकोज का, एनर्जी रिच कंपोनेंट ग्लूकोज यहाँ पर एंटर होता है ब्लड में. तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीफ फंक्शंस व्हिच ब्लड सर्व्स, जो ब्लड कैरी आउट करता है. तो ये एक सबसे बड़ी फंक्शन है ब्लड की, इट सर्व्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूजफुल कंपोनेंट्स लाइक ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज टू वेरियस सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी. पहली फंक्शन आपको पता होनी चाहिए. दूसरी फंक्शन हम देखते हैं कि समटाइम्स इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लिवर टू डिफरेंट बॉडी सेल्स. ये कभी कभार हम क्या काम करते हैं कि ये हम देखते हैं कि इट सर्व्स
in transporting, it serves in transporting glucose from liver to muscles. ये liver से ग्लूकोज को लेता है मसल्स की ओर, और वंस ग्लूकोज इज बीइंग टेकन फ्रॉम लिवर टुवर्ड्स मसल्स, और मसल्स में ये जमा रहता है, एक्स्ट्रा डिपोजिशन होती है इस एनर्जी रिच कंपोनेंट की, वह इन द फॉर्म ऑफ ए कंपोनेंट विच इज बीइंग कॉल्ड एज ग्लाइकोजन, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर ब्लड की। सो ये ग्लाइकोजन हमारी फैट सेल्स में, जिसको हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स में जमा स्टोर करके रखा जाता है, एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब हमें जरूरत पड़ती है तो दिस एक्स्ट्रा एफर्ट, या हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, या इवन कभी कभी वी गो फॉर फास्टिंग, जो उस टाइम पीरियड में हमें एनर्जी मिलती है हमारी पूरी बॉडी को, दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड विद हेल्प ऑफ दिस ग्लाइकोजन। सो इट इज दिस ब्लड which helps in serving, which helps in transportation of this glucose from liver towards muscle cells, and there inside the muscles it is being richly deposited in the form of component which is being called as glycogen. ये दूसरी फंक्शन है ब्लड की। तीसरी फंक्शन, it serves in the removal of waste gases। बहुत सारी वेस्ट गैसेस हमारी बॉडी में जो बनते हैं, वेस्ट मटेरियल जो बनते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो हम देखते हैं कि इसके एक्सचेंज होता है सेल्स टिश्यू से लेके डायरेक्टली वापस ब्लड में, और ब्लड इसको वापस ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू ए सेपरेट सिस्टम, हम आगे जाके सर्कुलेशन पढ़ेंगे। एंड दिस इम्प्योर ब्लड से, फॉर एग्जांपल दिस इज Hb + CO2, ये बनाता है इम्प्योर ब्लड, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। इम्प्योर ब्लड बनता है, ये इम्प्योर ब्लड चैनलाइज किया जाता है विद हेल्प ऑफ दैट वेरी सेम ऑर्गन दैट इज बीइंग कॉल्ड एज हार्ट, वो इसको ट्रांसपोर्ट करता है वापस देखिए होते हैं लंग्स फॉर फर्दर प्यूरिफिकेशन और फॉर फर्दर ऑक्सीजनेशन। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी फंक्शन है, यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्लड की, इट हेल्प्स इन द गेनिंग ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल्स दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ दिस वेस्ट गैस, दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरी फंक्शन, और एक चौथी फंक्शन ये है कि बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स जो हमारी बॉडी में बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग हियर वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिया हमारी बॉडी में लिवर से बनता है एक सेपरेट प्रोसेस के तहत, जिसको हम बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल। वन दिस वेस्ट गैस यूरिया इज बीइंग फॉर्म्ड विद इन आवर बॉडी, इनसाइड आवर बॉडी, फ्रॉम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट इज बीइंग कॉल्ड एज लिवर। तो लिवर से जब यूरिया बनता है विद हेल्प ऑफ दिस साइकिल, जिसको बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल, तो हम देखते हैं कि दिस यूरिया इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स किडनीज, टुवर्ड्स सेपरेट ऑर्गन। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं किडनी, फॉर फर्दर एलिमिनेशन एंड फॉर फर्दर प्यूरिफिकेशन। यहाँ कभी कभार हम देखते हैं भी हमारी सेल्स में, हमारी बॉडी एलिमेंट्री कैनाल में जो वेस्ट वाटर रिमूव होता है, फॉर्म बनता है, उसको भी धकेल दिया जाता है, उसको भी वापस आगे पहुंचाया जाता है टुवर्ड्स ये सेपरेट ऑर्गन्स, टारगेट ऑर्गन्स, स्पेशली किडनीज। वहां पर हम देखते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन होती है, या इवन स्वेट जो हमारी बॉडी में होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं, they help in the removal of those excess salts or that excess bad amount of water from our body from time to time। और एक important function हमारी ब्लड की एक सबसे बड़ी function है, सबसे बड़ी important function ये है कि it helps to maintain body temperature। ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। So it means that it helps in thermoregulation का मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी के अंदर वाले ऑर्गन्स होते हैं, जिनको बोलते हैं डीप सीटेड ऑर्गन्स का मतलब है जो हमारी किडनीज होती हैं, जो हमारा लिवर होता है, या जो हमारे इंटरनल वेसल ऑर्गन्स होते हैं, उनसे हीट को ये लाता है, पहुंचाता है टुवर्ड्स द सरफेस, ये इसको सरफेस पर पहुंचाता है। सो हीट इज बीइंग डेसिफेटेड, it is being deciphered, it is being transmitted from the deeper seated organs towards the surface, and this is one of the important chief function which blood serves, जो blood serve करता है। ब्लड की एक फंक्शन है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये ब्लड जो होता है, इट मेंटेन्स द प्योर बफर सोल्यूशन, ये बफर का काम करता है। बफर सोल्यूशन जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा आपको, अदरवाइज यू कैन से दैट इट मेंटेन्स द ओवरऑल पीएच ऑफ सॉल्यूशंस इनसाइड आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की जो पीएच होता है उसको ऑप्टिमम लेवल पर रखता है। इट एक्ट्स एज अ बफर सोल्यूशन का काम ये है कि ये नीदर एसिडिक बनाता है चीज़ों को, इंटरनल एनवायरनमेंट को, ना ही उनको ज़्यादा बेसिक बनाता है। ये न्यूट्रलाइज करता है, एक न्यूट्रल पीएच का मेंटेन करता है, उसको हम बोलते हैं बफर सोल्यूशन।
सो दीज आर द इम्पोर्टेंट की फंक्शन विच आवर ब्लड सर्व्स, जो हमारा ब्लड कैरी आउट करता है। तो जहां तक ट्रांसपोर्टेशन इन केस मेन का ताल्लुक है, तो वहां पर हम आगे जाके और एक चीज देखेंगे, how this transportation or how this circulation of the blood it is being facilitated or it is being carried in case of man, in case of human beings. Inshallah we will carry this topic in the next lecture. Thanks.